وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے کل نام کتنے ہیں؟ 20 میں سے آپ چند نام بتائیں۔ سورہ فاتحہ، جی فاتحۃ الکتاب، جی فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، نور۔ آپ سورہ فاتحہ کے پہلے تلاوت کریں اور آپ ترجمہ کرتے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم نہ ان کا جن پر غضب ہوا ولا الضالین۔ اور نہ بہکہوں کا۔ آپ سورہ لہب کا شان نزول بتائیں۔ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو کوہ شفا پر دعوت دیا تو ہر طرف سے لوگ آئے۔ حضور نے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد ان سے فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو تباہ ہو جا، کیا تو ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے؟ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ بتائیں۔ تم فرما ہوا اللہ ہے وہ ایک ہے۔ زور سے آپ آواز کو بولیں۔ تم فرما ہوا اللہ ہے وہ ایک ہے۔ لم یلد، آپ بتائیں لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ، اور نہ اس کے جوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان رحمت والا۔ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کریں اور ترجمہ بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز رضا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سکھاتا چلا۔ بس آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ رب الفلق کے شان نزول بتائیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق یہ اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن اسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ حضور کے جسم مبارک اعضائے ظاہرہ پر اثر ہوا، قلب اور عقل کے اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، جادو کا جو کچھ سامان فلاں کنویں میں ہے اور ایک پتھر کے نیچے سے دبا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں کا پانی نکالے اور پتھر اٹھایا تو اس میں سے حضور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئے اور حضور کے منہ شریف کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا تھا، کمان کا چلہ جس میں 11 گاٹھ لگی تھی، ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئی چبھی تھی، یہ سب پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کے خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق میں یہ 11 آیتیں ایک ایک آیت پڑھ کے کھولی جاتی تھی اور یہاں تک کہ ساری گاٹھ کھل گئی اور حضور تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فیل کس سورت کو کہتے ہیں؟
सूर्य फील खाली नाम बताएं आप। सूर्य फील किस सूरत को कहते हैं? सूर्य फील किस सूरत का नाम है? और आयतुल नज़ीर। सूर्य फील किस सूरत का नाम है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आप अलम सूर्य फील का शान नुज़ूल पूरा जो वाक़या है आप उसको बताएं। हाथी वालों से मुराद अब्राहा और उसका लश्कर है। अब्राहा यमन और हबशा का बादशाह था। उसने सनाआ में एक कनीसा यानी इबादत खाना बनाया था और चाहता था कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के यहीं आए और इसी कनीसा का तवाफ करें। अरब के लोगों को ये बात बहुत शाक थी। कबीलाए बनी के नाना के एक शख्स ने मौका पाकर उसमें कजाए हाजत की और उसे निजासत से आलूगाह कर दिया। उस पर अब्राहा को बहुत तेश आया। इस इरादे से वो काबा को ढाने के लिए अपना लश्कर लेकर चल पड़ा, जिसमें बहुत से हाथी थे और उनका पेशवर एक बड़ा अजीमुल हक्शा खूहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर सबसे पहले अब्राहा के मक्का के जानवरों को कैद कर लिए। उन्हीं में 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास आए। बहुत जशीमो बाशिकवा के बाद अब्राहा ने आपकी ताज़ीम की और आपको अपने पास बैठाया। आपने फरमाया, मेरा मतलब यह है कि मुझे मेरे ऊँट वापस किए जाए। अब्राहा ने कहा, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। मैं यहाँ खाने काबा को ढाने के लिए आया हूँ। वह तुम्हारे बाप दादा का मुअज्जम और मोहतरम मकाम है। तुम उसके लिए कुछ नहीं कहते, अपने ऊँटों के लिए ही कहते हो। आपने फरमाया, मैं ऊँटों का ही मालिक हूँ, ऊँटों के लिए ही कहता हूँ। काबा का जो मालिक है उसकी खुद हिफाजत फरमाएगा। अब अब्राहा ने आपके ऊँट वापस कर दिए। आपने कुरैश को जाकर हाल सुनाया और मशवरा दिया कि वो पहाड़ की उन चोटियों और घाटियों में पनाह गुज़ीम हो। आपने चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया। आपने दरवाज़ा काबा पर पहुँचकर इलाही बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत की दुआ फरमाई और दुआ से फारिग होकर आप अपने कौम की तरफ चल पड़े। अब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथी को भी तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी न उठा। उसे जिस तरफ चलाते चलता और काबा की तरफ बैठ जाता। अल्लाह ताला ने उन पर छोटे छोटे परिंदे भेजे जो संगरेजा गिराते थे। जो समंदर की तरफ से फौज आए, हर एक के पास 3-3 कंकड़ियाँ थी, 2 पाँव में और एक मुंकार में। जो वो संगरेजा जिस पर भी गिरता वो उस संगरेजा से हलाक हो जाता था। वो संगरेजा खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी से गुजरकर जमीन पर पहुंचता। हर संगरेजा पर उस इंसान का नाम लिखा होता जो उस संगरेजा से हलाक किया जाता था। जिस साल यह वाक़या हुआ उसी साल उस वाक़या के 50 रोज़ बाद हज़रत सैयदना आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। सूर्य अस्र की सूरत को कहते हैं? हाँ, शाबाश। सूर्य माऊन की सूरत को कहते हैं? सूर्य माऊन की सूरत को कहते हैं? शाबाश। आयतल लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन का तर्जमा क्या है? भला वो जो दिन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम का तर्जमा क्या है? फिर वो है जो यतीम को धक्के देता है। यतीमों के धक्के देने से मतलब जिसके बाप ना हो, हाँ, जो यतीमों को अनाथ हो। आप अलम तरा की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आप तर्जमा करें। तुम तर्जमा करो। ए महबूब, क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? चलो आगे। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या उनका दाल तबाही में न डाला? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। और उन पर छोटे छोटे परिंदों की टुकड़ियां न भेजी? तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। कि उन्हें कंकड़ों के पत्थर से मारे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल। तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। खाई और खेती की पत्ती। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का तर्जमा बताएं। तुम फरमाओ, मैं उस
की पनाह लेता हूँ जो सब लोगों का रब, मलिकिन नास, सब लोगों का बादशाह, इलाहिन नास, सब लोगों का रब, मिन शर्रिल उसके शर से वसवासिल खन्नास। जो लोगों के दिलों में बुरे खतरे डाले। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वह अल्लाह एक है, अल्लाह है वह एक है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। तर्जुमा बताएं। जब अल्लाह की मदद और फतह आए, हाँ, जब अल्लाह के मदद और फतह आए। वराअतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। और लोगों को तुम देखो जो अल्लाह के दिन में फौज फौज दाखिल होते हैं। जी, फौज फौज का मतलब अल्लाह के दीन में वे सब पूरे साथ साथ आते हैं हमसे। सूरह फील से मुराद कौन है? हाथी वाला जी, वो हाथी वाला कहाँ का बादशाह था? यमन और हफ्सा। और जो यमन हफ्सा का तो वो बादशाह था, वो कौन कैसा घर बनाया था? कनीसा। सबसे बड़ा हाथी का नाम कौन था, क्या था? अजीबुल हसबा के पेकर, उस पैकर का नाम क्या था? महमूद। महमूद। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस यहूदी ने जादू किया था उसका नाम क्या था? लुबैद बिन असम। क्या था नाम? लुबैद बिन असम। लुबैद बिन असम। और वो जादू के सामान टोटल कितने थे? सिर्फ गिना के हमको गिनवाइए। हुजूर के काबे की थैली के अंदर हुजूर के मोए शरीफ हाँ। और कंघी के कुछ चंद दंदाने, एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गांठें थी और एक मोम का पुतला जिसमें 11 सुइयां थी। हाँ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जादू किया था तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हुक्म दिया था कि वहां से उठा कर लाओ? अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन था वो? अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तब्बत यदा का शान नुज़ूल बताओ। तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। शान नुज़ूल, ये आयत क्यों नाजिल हुई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई सफा पर अरब के लोगों को दावत कुहे? सफा पर हाँ। अरब के लोगों को दावत दी तो हर तरफ से लोग आए। हुजूर ने अपने सिद्क़ व अमानत की शहादत लेने के बाद फरमाया, इन्नी लकुम नज़ीरुन बैना यदै अज़ाबुन शदीद। उस पर अबू लहब ने हुजूर से कहा था कि तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था? उस पर सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसको जवाब दिया। अबू लहब बहुत गौरा और खूबसूरत था, इसलिए इसकी कुनियत अबू लहब है। कुनियत इसकी क्या है? अबू लहब। अबू लहब। अबू लहब की बीबी क्या उठाती थी? लकड़ियों का गट्ठा। हाँ। उसकी बीवियों को फांसी कैसे लगी? जब वो एक लकड़ियों का गट्ठा वो एक रास्ते से लेकर आ रही थी तो एक पत्थर पर आराम के लिए बैठी तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो उनकी लकड़ियों का गट्ठा खींचे तो रस्सी खुल गया और वो फांसी में चल गई। फांसी में से फांसी लग गई। तो आपने इन तमाम सवालों के जवाब आप तर्जमा कंजुल ईमान से बताए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को और बेहतरीन समझ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इल्म में खूब इजाफा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।